So it later has its solution also. This is uploaded on the Rejuvenate YouTube channel. But the point I'm trying to make here is, at every different time snapshot, you have a different picture altogether, right? So a way to think of this in mathematical terms is, this y is equal to a function of time. And what does this y mean here? This y is a series of picture. So at t is equal to 0, it's a blank maroon screen. At t is equal to 0. As you move on, at t is equal to 10 seconds, the image is different, right? So it has a certain diagram, let's say like this. Then at t is equal to 20, the image again changes to this, this, and then this. Okay? And at any point of time, if you guys have any questions, doubts, or you want to talk, just feel free to type in chat or unmute yourself. Okay. So this y is a series of pictures as a function of time. So basically this is the equation for the movie. And here this time varies from 0 to the full time length of the movie. Let's say it's 10 minutes. Right? I hope this part is very clear in terms of understanding. So now if I plot this in graph, I know you guys have already come across x and y variables and the axis. So I'll not go into very basics, but I will definitely take some time to explain this. X here is the independent variable. Independent variable means it does not depend on anything. It can take any value. So here the time is the independent variable. And for every different time snapshot, if I look at 10 seconds, if I look at 20 seconds, and if I look at 1 minute, so all of this will have a different image. Now, how do I plot this image on my y-axis? So there can be multiple ways to do this. What you can say is, for every XY combination, I put this color as a number format. So number can be, for red, I have 0, 0. For blue, I have 0, 1. And for every different coordinate, I have this value and I multiply with a certain coordinate and the color, a numerical representation of all this. And then I sum it up. So basically, this image has a corresponding number to itself. And that can also be done in a lot of ways. Of course, this is not part of the exact syllabus, but to give a very conceptual idea, this y here at t is equal to 0. So on all the different coordinates, all the different pixels, the color is maroon. So if I do a addition of, let's say, x into maroon plus y into maroon, where x and y are the coordinates of this image. So this particular value is x comma y. And when I add them up, I will get a corresponding y value. So a lot of times you would have seen, if you have used any photo editing software or anything, you have a certain saturation to hue graph or color balance to brightness graph. You can have a lot of these graphs. The brightness is denoted as a number. Color saturation is denoted as a number. So here a function will look like this, let's say. And this is actually like someone who has watched the movie Matrix can imagine numbers falling like 0, 1,
and people could actually visualize an image from those numbers. So if you are smart enough, or if there is a smart enough software to decode these y values as an image, then just by looking at this graph, you're actually looking at the movie. So अभी हमने क्या किया, लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, बट हम देख रहे थे हर बार मेरा कुछ रिमाइंडर बच रहा था. और रिमाइंडर क्यों बच रहा था? क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन उठा के उसे डिवाइड कर देता था. अब लेट्स से मैं एक सोच समझ के अपना फैक्टर चुनूंगा. तो बेसिकली अगर मैं ले रहा हूं लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो पहले मैं क्या बोल रहा था, चलो यार x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, क्या है देखा जाएगा, रिमाइंडर कुछ आए तो आए वरना फिर से करेंगे. बट अब मैं चाहता हूं इसका एक फैक्टर निकालना. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का मेरे को एक फैक्टर निकालना है. और फैक्टर हम किसे कहते हैं बाय द बेसिक डेफिनेशन? क्या 2 9 का फैक्टर है? 2 9 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आता है व्हेन यू डिवाइड. तो फैक्टर उसे कहते हैं जब हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर इज जीरो. एग्जैक्टली. तो हमें अब ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए भी कि जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए. और आप लोग सोच के बताओ, ये हम लोग एक्चुअली अपने प्रीवियस सेशन में इसी सेशन में प्रीवियस पार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं. एनीवन कैन थिंक ऑफ एनी फैक्टर जिसे हम डिवाइड करेंगे यहां पे तो वो 0 आ जाएगा. इसको एक और तरह से बताता हूं मैं. हम निकालेंगे वो फैक्टर मगर एक ट्विस्ट के साथ, थोड़ी बेटर क्लैरिटी के साथ. सॉरी, मैं यहां पे 2 पॉलिनोमियल प्लॉट कर रहा हूं. एक इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है जहां पे ये लेट्स से ऐसा कुछ आ रहा है. ओके, और मेरा दूसरा पॉलिनोमियल, आई नो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बने मेरे से, बट अज्यूम कर लो ये एक्स और वाई स्ट्रेट है. लेट्स से मेरा दूसरा पॉलिनोमियल इस तरह का कुछ एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो वो लाइन है. लाइन है इसलिए मैं दोनों तरफ इस तरह से एरो भी बना रहा हूं. ओके, आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट के हिसाब से देखो. ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है, ये 2 पॉलिनोमियल है. एंड प्रीवियसली मैंने अपने सेशन में बहुत डिटेल में बताया कि हम लोग किस तरह से इसको पॉइंट को प्लॉट कर रहे थे, एक एक पॉइंट निकाल रहे थे हम. एक्स को 1 लिया था, पी एक्स कुछ आया था. एक्स को 2 लिया था, पी एक्स कुछ आया था. तो हमने ऐसे पॉइंट्स ले लेके प्लॉट किया था. इसी तरह मैं एक दूसरे पॉलिनोमियल जो यहाँ पे इस तरह से है कुछ, जैसे एक्स प्लस 3, तो हमने x प्लस 3 का एक x को लिया फिर कुछ निकला, x को 2 लिया फिर कुछ निकला और फिर उसको प्लॉट किया था. ओके, सो यहाँ पे इसी तरह से हमने 2 पॉलिनोमियल्स को प्लॉट कर दिया है. अब आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ एक टर्म बताया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? इज वेरी सिंपल. जीरोस वो है जहां पे x एक्सिस को हिट कर रहा है, राइट? All of you remember this? Roots, exactly. So these are the roots of the polynomial equation, right? Then अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो px है, यहां पे जो px है, इसको मैंने कैसे लिखा था, कुछ x माइनस कुछ तो लिखा था मैंने. लेट्स से अभी हो सकता है कुछ और ही हो, बट आई एम जस्ट राइटिंग दिस फॉर माय ओन सेक. And we will verify if this is right. Sorry? Last one was x minus 2, x plus 3. Yes, last one was that. But here I have taken a different. Okay, चलो इसको मैं बताता हूँ. आपने जो बोला
वो क्या था, x माइनस टू इंटू x plus 3. x प्लस 3। तो यहाँ पे रूट्स क्या थे इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के रूट्स क्या होंगे इसके? -3 and 2. -3 and 2। यहाँ पे सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम x को 2 रख रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग बिकम्स 0। तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट एंड x इज इक्वल टू -3 इज अ रूट। सो अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो x इज इक्वल टू 2 में ये कर्व x एक्सिस को हिट करेगा, x इज इक्वल टू -3 पे भी ये x एक्सिस को हिट करेगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूं 1 2 3 4 और यहाँ लिखूं -1 -2 -3, तो x इज इक्वल टू 2 पे, यानी इस जगह पे ये ग्राफ हिट होगा, ये x एक्सिस यहाँ पे हिट होगा, और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी हिट होगा। तो जो पहले वाली इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी बनती, ठीक है? अब हमें ये पता है जो ये रेड कलर का जो कर्व है वो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 नहीं हो सकता। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखो इसका ये जो पार्ट है बेसिकली -1. हाँ ये -1 है, बेसिकली ये छोटा है और ये वाली लेंथ थोड़ी लंबी है, जहां पे रूट हिट हो रहा है। This should be 3. Yes, this should be 3 or something that is more than the distance here. तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक इक्वेशन लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा, राइट? और इस ग्राफ का 0 हमें पता है ये 3 है, एक 0। वी आर डैम श्योर अबाउट इट कि ये 3 एक 0 है, ये -1 एक 0 है, ठीक है? अब लेट्स लुक एट द राइट ग्राफ। राइट साइड में भी मैं बोल रहा हूं लेट्स से यहाँ पे ये 3, क्या कोई मेरे को इसके लाइन की इक्वेशन बता सकता है? इट इज वेरी इंट्यूटिव। हम मेरे को बताना है ये पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन, हमें दो चीज पता है। x minus 3. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। आई विश कि सबको ये निकाल पाए, एंड दिस हैज टू बी x माइनस 3, क्योंकि ये हमें यहां पे दो चीजें पता है। एक तो ये पता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। ये स्ट्रेट लाइन है तो इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, और लीनियर मतलब एक लाइन उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है? तो x माइनस 3 या x माइनस कुछ हो सकता है, बट बेसिकली यहां x की पावर 1 होगी, ठीक है? अब दूसरी चीज है यहां पे जो दिया गया है कि हमें ये पॉइंट दिया गया है, अगर मैं x को 3 रख रहा हूं तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो x माइनस 3 में आप अगर x को 3 रखो तो वो 0 हो जा रहा है। और अगर मैं बोलूं कि px, तो आपने सही बोला। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूं एक दूसरा पॉलिनोमियल p2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या ये 2x माइनस 6 की लाइन हो सकती है? क्या ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes. कर रहा है, राइट? किसी को और कुछ डाउट है? कुछ भी समझ में आ रहा है? सब कुछ तो वेरी गुड, बट प्लीज कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव, एटलीस्ट इट वाज डिजाइन्ड टू बी वेरी इंटरैक्टिव सेशन। आप लोग बात करें, मैं उस तरह से पढ़ाऊं। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोचकर आया था कि आप लोग अगर ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाने देना चाहते तो मैं कुछ और ही पढ़ा दूं। आपको कोई मन में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मैं वो पढ़ा दूं। तो इट वाज सपोज टू बी लाइक आप लोग गाइड करें इस सेशन को।
So that's why I want full participation from everyone. तो यहाँ पे आप देखो, ये x minus 3 भी हो सकता है, 2x minus 6 भी हो सकता है. So to give you an idea, हमें बस ये दिया गया है कि ये x is equal to 3 पे हिट कर रहा है. बेसिकली ये दिया गया है कि x is equal to 3 is a zero of this polynomial. तो वो ये एक चीज दी हुई है, जीरो वाली चीज, और दूसरी चीज दी हुई है कि ये लाइन है. अगर सिर्फ ये दो चीजें दी गई है तो सेम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मैं एक और पॉलिनोमियल प्लॉट कर रहा हूं जो सेम चीजें सेटिस्फाई करेगी, जैसे कि ये जो भी ब्लू लाइन से मैंने बनाए हैं, ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं, उनमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. x is equal to 3 is a zero of this polynomial and it is a linear expression, क्योंकि ये लाइन हो रहा है. ठीक है, इसीलिए हमें ये नहीं पता कि x के आगे क्या होगा. बेसिकली लाइन जैसे जैसे टेढ़ा होते जा रहा है वैसे वैसे स्लोप चेंज हो रही है लाइन की. और ये जो x का कोएफिशिएंट है, आई एम गिविंग सम आइडियाज, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, दिस शुड बी वेरी क्लियर. ये x के आगे जो कोएफिशिएंट है c कैन बी एनी नंबर. दिस c डिटरमिन्स कि x का स्लोप क्या होगा. अगर मेरे को c भी पता है ना, तो आई एम वेरी श्योर कि लाइन ये यही वाला लाइन होगा या ये यही वाला लाइन होगा. बट इस केस में हमें स्लोप नहीं दिया गया है, तो दोनों सही आंसर है. x माइनस 3 भी हो सकता है या फिर 2x माइनस 6 भी हो सकता है. ठीक है, Sir, I got the But quotient of the you above. got the quotient. What is that quotient? X minus 2. X minus 2. ओके, x माइनस 2 आपने निकाला, उसको हम लोग देखेंगे. x माइनस 2 मैंने यहां लिख लिया है, हम लोग तुरंत देखने वाले हैं कि वो सही है या गलत है. मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके सेम पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा. आई थिंक वंश ने सेम पॉइंट, सेम आइडिया को यूज करके ये फैक्टर निकाला है. फिर मैं माइनस Z3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी चीज को. ओके, तो पहले मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे टर्म सारे में लिखते जाऊंगा. x से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये x क्यूब. दूसरा मल्टीप्लाई किया Z1 x स्क्वायर. अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, कभी नहीं होगी. मैं ये इंश्योर करने वाला हूं, मेरे माइंड में यहां पे एक्चुअली कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉन. ठीक है, ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये लाइन माइंड में ड्रॉन है. अब आप देखो, मैं हर डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट पावर्स के टर्म्स को ही लिखूंगा. ठीक है, तो अब आप इससे कैलकुलेशन मिस्टेक, या आई कैन हियर यू नाउ. ओके, सो अब मैं यहाँ पे x को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे ये x स्क्वायर का दोबारा टर्म आने वाला है, क्योंकि x इंटू माइनस Z2x, तो ये क्या बन गया माइनस Z2x स्क्वायर. माइनस Z2x स्क्वायर, एग्जैक्टली. अब मैंने इसको, ये बन के एक ही एक्सप्रेशन है, ये एक ही लाइन में है, बट इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं लाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स मीनिंग जिसमें सेम x की पावर है, उनको मैं एक ही लाइन में रखना चाहता हूं ताकि मैं फाइनली बाद में ऐड कर लूं जल्दी जल्दी. ठीक है, और अब क्या है, माइनस Z1 माइनस Z2 हो गया. अब ये a0 देखो, पहले a0 क्या है यहाँ पे, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, यानी कि x की पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे. जब दो जीरोस मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो सिर्फ आपको x के कोएफिशिएंट को देखना है. जब आपको प्रोडक्ट देखना है सारे जीरोस का, और ये कितना भी लंबा पॉलिनोमियल हो सकता है, कितनी भी बड़ी डिग्री हो सकती है, तो हमेशा आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है या पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो ये a0 होता है. ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a0 से रिप्रेजेंट होगा, और -1 होगा या नहीं होगा, इसके लिए
हम लोग नंबर ऑफ जीरोस या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना पड़ता है हमें, ठीक है। और फॉर्मूला अब आप अगर बुक में देखोगे, रिवाइज करोगे, तो मैंने दो चीजें यहाँ पे काइंड ऑफ स्किप की है, क्योंकि मैं फॉर्मूला पे सिर्फ नहीं बताना चाहता था, मैं बहुत इंट्यूटिव वे में और मल्टीप्लाई करके बताना चाहता था। एक चीज मैंने किया है कि मैंने ए एन को 1 माना है। तो फॉर्मूले में आप देखोगे, हर फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो लोग डिवाइड कर देते हैं ए एन से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी यहां पे ये चीज 1 चाहिए, ठीक है। आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे प्रोडक्ट को हम वो लोग लिख देते हैं ए नॉट बाई ए एन, ठीक है, इनटू जो पावर, अगर वो -1 होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स होगा या नहीं ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो यहां पे वो हो जाता है 3 इन दिस केस, क्यूबिक के केस में।